नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर हम सब धन्य हैं गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत, राहुल अंकल जी की पुस्तक, डिवाइन पुस्तक, गुरुजी लाइफ एंड स्पिरिचुअलिज्म का 11th सेशन पढ़ा जाएगा। इस सेशन में जो सेशन को रीड करेंगे वो तनिष्क कपूर आंटी जी हैं। मैं तनिष्क कपूर आंटी जी के बारे में बताऊंगा। तनिष्क कपूर आंटी जी इज ए गुरुजी's blessed old sangat who came into Guruji's charan during 1989 when Guruji was in Jalandhar. A communication and soft skills professional, she had the opportunity to stay in diverse geographies of the country as a defense official spouse. Next, I will try to read Usha Basin Auntie Ji's details. Usha Basin Auntie Ji is a old Sangat whom Guruji Maharaj connected in 1998 when Guruji Maharaj came to Empire State for satsangs, for starting satsangs. Usha Basin Auntie Ji is a former joint secretary, retired from Government of India, and she also she was also assigned the responsibility of Additional Director General with Prasar Bharati Government of India. She has received, she is the recipient of Commonwealth Award and Herbert Humphrey Fellowships and authored 3 books. Usha Bhasin Auntie Ji sits on boards and advisory councils in academic institutes and research institutions besides various NGOs. And in the last, I will let you know about Dr. Shavlinder Rao uncle, who has authored the book. Rahul uncle had darshan of Guruji Maharaj during his Jalandhar days. He is a retired civil servant and presently member Central Administrative Tribunal, CAT, Government of India. Sangaji, now on behalf of Multilingual Global Sevadar team, I will invite Tanuj Kapoor Auntie Ji to initiate the reading, please. Over to you, Tanuj Auntie. Jai Guruji. Jai Guruji, thank you very much, Uncle, for this opportunity. And Guruji Maharaj, thank you immensely. आज आपने जो मुझे सेवा दी है. So, time is short and so much has to be told about, the beautiful life lessons, the satsangs and the spiritual information that is there in these pages. So I will straight away come down to the seva assigned to me today. And during, rendering this seva, if I do falter or do forgive me, dear Sangaji and Guruji Maharaj. So with Guruji, your blessings and you with me, let's begin the reading. Sangaji, today I will be reading pages 104 to 115. These are the last few pages of chapter 3, Assuaging with Compassion and Healing. The contents of these pages have humbled me in more ways than one. Firstly, my reverence and gratitude towards my Guruji has further deepened. His meher goes beyond mere sympathy and kindness. He relieves us of our pain and suffering, both at a physical and psychological level, thereby enabling us in our own spiritual journey. This, what I'm saying, I'm putting into words, is all about the contents in these pages. Secondly, my admiration for the author for the extensive research in gathering information to highlight Guruji's life and spiritualism. Just the apt title for this book. It conveys a deeper understanding of Guruji's purpose on this earth, his interactions with the Sangat, both casual and through divine interventions.
In the pages mentioned, the author continues to cite some more satsangs involving healing people of their physical, physiological, and psychological sufferings. They talk about Guruji's Leela and Moj. Assuaging with compassion depicts the humane aspects of Guruji, portraying him as a fine human being, absorbing the pain of the suffering individuals without mitigating his divinity. Now, before I go into a deeper reading and maybe a little more details on the pages, I will highlight the points that Rahul Uncle, the author, has brought about in these pages. As we further talk about Guruji's tools for healing, namely his mere gaze, the famous kitchen spoon, betel leaves, the copper lota, and his divine utterances, Kalyan Kitta, the importance of Guruji's timing for healing is further reinforced in these satsangs. These pages also strengthen the fact that Guruji is aware about our suffering and does not need to be verbally told about it. They also highlight the spiritual healing and upliftment that happens alongside the physical relief. Next, the author conveys his thoughts on why it was necessary for Guruji to adopt these various tools, although he has the power to change everything in the blink of an eye. Probably to achieve his ultimate goal of connecting us to the Supreme Being. Also, the difference between faith and Shraddha, so beautifully explained by Guruji, is an important paragraph in these pages. And finally, the perspective of some people for their question, why don't the enlightened, like Guruji, cure the ailing with the blink of an eye? The answer to this question, Rahul Uncle has beautifully written, and that also is spiritual enlightenment for us. So let's read through the contents of pages 104 to 115. Like I said, there are many satsangs here which continues from the previous pages of this chapter. The first one is titled Darshan of Guruji, Child Suffering from Cerebral Palsy Speaks Their First Word. This satsang is about Sukhi Harrison auntie who lives in Ireland. She's not only a devoted Sangat, but a much loved Sangat by Guruji. Guruji referred to her as his daughter. Apart from, okay, so let's first read. And this satsang, it highlights about Guruji's plan. And like I said about Guruji's timing, it was not that as soon as the problem came up with the Sukhi auntie's child or about her husband, which is another satsang, it's not that immediately grace came. Like Guruji said, we need to endure our karam. So when the timing was right according to Guruji, he called Sukhi auntie in his sharan. And it also, he knew and he told the Sangat that Sukhi auntie was on her way to his darbar. Before she could reach the darbar, he had told the Sangat, and I have read these satsangs, I have listened to Sukhi auntie's satsangs. Even when she was at the airport in Ireland, she was overweight by, if I'm not wrong, about 200 kgs because she was traveling with a child with a lot of baggage and she was going to have problems with weight issues at the airport. But Guruji solved that and he told the Sangat that she's carrying a lot of baggage. And that, like I said, he also told the Sangat when she, just a few, maybe minutes before she was to reach the darbar, that beti aane wali hai. He referred to her as his daughter. How loving is that? And also it highlights Sukhi auntie's immense faith in Vaheguru. The supreme energy is one. It is the different avatars that come at different time. And that is a part of the spiritual learning, the spiritual upliftment that happens for all of us. Thank you for that, Guruji. And finally, most importantly, Guruji's Moj and Kirpa
immense kirpa is highlighted in this satsang. So I will read out a few important aspects from this. So it says Sukhi and David were married for several years, but they did not have any child. After many prayers to Vaheguru and the Lord of Lords, they had a baby girl, Sheena. But Sheena did not show any signs of normal behavior expected of a child her age. CT scans, brain scans, ECGs, etc. were conducted and repeated to find the exact prognosis. Finally, Sheena was diagnosed with cerebral palsy. The parents were warned that Sheena would be unable to sit and walk properly and her face may get distorted. But we all know with Guruji's grace, Sheena not only blossomed into a fine, normal human being, but is also a devout Guruji's Bhakt. So, before her actual arrival, now Sukhi auntie was guided by, she was coming to India to look up her mother. And when she was here, her sister told her, why not go to Guruji? Guruji is known to bless, and he blesses in ways which are incomprehensible. So Sukhi auntie did decide on going to Guruji's darbar. Sukhi went to have a darshan of Guruji. Before her actual arrival, Guruji was stating to the Sangat present there, Beti aayi hai, my daughter has come. After paying her respects, she received the prasad distributed by Guruji. After distribution of the prasad, Guruji got up and sat beside her. He recounted her entire life story, her ailments, operations, her home, and its detailed decoration back in Dublin. Each item like toys, cutlery, dinner set, etc. So Guruji has, we think Guruji, Sukhi auntie is meeting Guruji for the first time. But that also myth is broken and shattered by Guruji by telling us time and again that he's connected with us, with our soul for ages and for many lifetimes. And who needs how much healing, how much baggage of karma are we carrying? That also is known to Guruji. How much bhakti probably we have done in the previous lifetimes is known to Guruji. And when is the time that the Supreme Lord is going to give his darshan, is going to meet us physically, is also decided by Guruji. So now it was Sukhi auntie's time for that divine darshan. So Guruji told her in detail about everything and asked her to bring Sheena the next time. Sukhi was reluctant in the first instance, fearing she would be unmanageable in the Sangat, because a child with cerebral palsy is not easy to manage. So she was a bit hesitant. But nevertheless, she brought Sheena to Guruji's darbar the next day. On entering Guruji's darbar, Sheena left her mother's hand and ran to Guruji. Sheena, the 3-year-old who never spoke a word before this, fell at Guruji's feet and uttered her first word, Vaheguru. Thereafter, Sheena had a normal physical and psychological development. Shukrana Guruji. For a parent who is enduring this, who has a child with this problem, only can understand, or any other problem which probably doesn't have a medical cure, is to put in worldly terms, is a burden for many. But the point is, by giving us a gift of such a child, Guruji, through his healing, through his guidance, and he uplifts us spiritually. He explains to us that this is all part of our karma and the karma of the child. And the sooner we accept it with love, and the sooner we, endure these karmas with his grace, we not only become better individuals, we bring up the child with love. And in this case, Guruji's meher, it is his moj. In this case, it is with a blink of an eye. And his outpouring of love, the compassion which is mentioned in the title, comes through so beautifully with this satsang. So the next heading is
holding the hand for a smooth medical treatment and recovery. Now here the next pages 105, 106 and 107, they talk about Guruji's blessings on cancer patients, how his healing works both physically and psychologically. Because when we read these pages, we realize that it is not only in the physical problem, the disease not only inflicts us physically, but it eats us from within. It has a huge, psychological impact, which leads to anxiety, which leads to depression, to anger from within about your own situation. And also it talks about the societal reactions to these problems and to these people. All these aspects are discussed in these pages. And so it also talks about, yes, the impact not only on the patient, but also on the family, and how it impacts the relationships with close family members and the society at large. So I'll read some of the important aspects. जय गुरु Cancer जी, patient. जय गुरु जी, तनुज आंटी। हाँ तनुज जी आंटी, अंकल। आंटी 5-6 संगत के मैसेज आए हुए हैं कि थोड़ा-थोड़ा हिंदी में भी बोलते रहें तो अच्छा रहेगा। जी अंकल, जब मैं थोड़ा अपनी तरफ से बोलूंगी तो जरूर हिंदी में बोलूंगी। जी आंटी। But when I'm reading the book which is in English, it cannot be done in Hindi. But एसेंस। the essence, yes, मैं जरूर हिंदी में बात करूंगी. जी Thank you आंटी। so much for reminding me, अंकल जी. Thank you. प्लीज। So while I read, cancer patients usually have feelings of guilt, of needing to depend upon others, loss of control, fear of recurrence, uncertainty about the future, reduced self esteem, and feelings of loneliness and abandonment. There is marginalization and even stigmatization. All these lead to depression, anxiety, and anxiety. A cancer patient faces altered states of time, space, and existence while passing through various phases of the disease. They reevaluate their space, home, and the rest of the world, and the microcosm of close relationships, and in social and community relationships in the macrocosm of broader work. The person encounters the existential confrontation with altered morality. So, इन लाइनों में, इन शब्दों में राहुल अंकल ने बताया है कि जब कैंसर जैसी बीमारी का डॉक्टर बताते हैं पेशेंट को और फैमिली को, तो बहुत बड़ा धक्का लगता है. इट इज स्टिल अ वर्ड, दो बहुत सारी इसके इलाज आ चुके हैं, एंड विद गुरुजी's ग्रेस एंड ऑल्सो विद मेडिकल एडवांसमेंट बहुत पेशेंट कैंसर पेशेंट्स को फायदा हुआ है. बट फिर भी पेशेंट जो महसूस करता है अपने अंदर, उसको बहुत एक किस्म का बोझ लगता है कि अब मैं पूरे परिवार के दूसरे मेंबर्स पर एक बोझ बन जाऊंगा, और क्या पता मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरी लाइफ कितनी लिखी है आगे. ये सारी बातों से एक एंजाइटी होती है, उसे घबराहट होती है, उसे डर लगने लगता है, और ये उदासी होती है जो डिप्रेशन की तरफ पेशेंट को ले जाती है. तो इन पेजेस में बताया गया है कि परिवार के ऊपर उसका असर होता है, और सोसाइटी में भी उसका असर होता है. सोसाइटी वाले लोग जो हमें मिलते हैं, वो हमें एक तरह से दया भावना की तरफ से देखते हैं. सपोर्ट कम मिलता है, बट सिंपैथी ज्यादा होती है कि they feel that probably life is coming to an end for the cancer patient. बट इन सत्संग से गुरुजी हमें होप दे रहे हैं, सभी कैंसर पेशेंट्स को होप दे रहे हैं कि मेडिकल साइंस से भी ऊपर है परमात्मा की मेहर, परमात्मा की कृपा, और उसके लिए हमें सिर्फ कनेक्ट करना है. आगे भी कुछ पैराग्राफ्स हैं जिनमें राहुल अंकल ने बड़ी खूबसूरती से बताया है, गुरुजी के शब्दों में बताया है, जहां गुरुजी बताते हैं फेथ और श्रद्धा में क्या फर्क है, कि क्या कुछ चाहिए इस कृपा को लेने के लिए, क्या कुछ हमें करना है इस कृपा को लेने के लिए. So, or under these circumstances, the satsang along with Guruji
fulfills a lot of psychological and spiritual void. तो ये बता रहे हैं कि ये जो हम सत्संग सुनते हैं और पढ़ते हैं, इनसे जो पेशेंट्स हैं, जो सफर कर रहे हैं, उनको बहुत अंदर से एक शीतलता महसूस होती है, एक होप, आशा महसूस होती है. एंड दैट इज व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से पॉजिटिव आउटलुक आता है. एंड दैट इज सो इम्पोर्टेंट इन हीलिंग. तो ये भी आगे बताया है कि हाउ गुरुजी's ग्रेस वर्क्स एंड हाउ इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. सो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आगे. बताया है कि हाउ so many cancer patients received Guruji's blessings which helped them overcome the disease and its allied complications. तो गुरुजी की मेहर से न केवल कैंसर पेशेंट्स ने इस बीमारी पे विजय प्राप्त की, पर उसके साथ जो बाकी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बताई गई हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, सोसाइटी में आपका क्या क्या आप फील करते हैं, क्या आप अपने अंदर महसूस करते हैं, उन सारी चीजों से महाराज हमें ऊपर उठाते हैं. Yes, so it says, cancer leads to panic, fear, anxiety in many an individual. The protective umbrella of assurances by Guruji, Ja Kalyan Kitta, go you are blessed, removes a morbid psychological impact. The blessings of Guruji and the associated systems of the Sangat and Satsang provide the psychological and spiritual succor to the individual to work through the suffering with fortitude. तो ये जो सत्संग हैं और गुरुजी की मेहर है, ये हमें शक्ति देते हैं कि हम इस बीमारी से लड़ सकें with a positive attitude and with strength which comes from गुरुजी. सो गुरुजी के जैसे मौज हो, और जैसे बताया है कि हर पेशेंट के लिए अलग तरीका महाराज ने इस्तेमाल किया, और कुछ संगत तो 100% ठीक हो गई, कुछ संगत की बीमारी बहुत हद तक ठीक हो गई, कईयों को लाइफ लॉन्ग ग्रेस दी, कईयों को कुछ एक्स्ट्रा साल दिए. वो क्यों किए, किस लिए किए, केवल गुरुजी जानते हैं. और गुरुजी बहुत बार कहते थे कि हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है, हमारे कनेक्शन पे डिपेंड करता है, एंड देन गुरुजी की मौज पे डिपेंड करता है. The cancer may completely disappear by Guruji's grace. The suspected cancer would be reported negative. The therapies may turn out to be manageable with little physical and emotional discomfort, and the person in post-recovery would survive much longer than the prognosis of the medical fraternity. तो ऑथर कह रहे हैं कि अलग अलग संगत ने अलग मेहर एक्सपीरियंस की गुरुजी की. कुछ ने जो ट्रीटमेंट होते हैं कैंसर के, लाइक कीमोथेरेपी, रेडिएशन, उनके होने के बावजूद पेशेंट को कोई फिजिकल तकलीफ नहीं हुई, खुशी खुशी, उनकी वीकनेस भी नहीं हुई. और जो इमोशनल डिस्कम्फर्ट होता है, जो कैंसर का नाम सुनते ही जो फियर, पैनिक और एंजाइटी की बात की गई है, महाराज की कृपा से उनकी संगत ने वो भी एक्सपीरियंस नहीं किया. तो जो डॉक्टरों ने कहा कि ये होगा, कुछ ही हफ्ते मिले हैं या कुछ ही महीने मिले हैं, वो सारी थ्योरीज को गुरुजी की कृपा ने झुठला दिया. तो कैंसर के संदर्भ में 2 सत्संग अंकल ने बताए हैं. वन इज अबाउट ब्रिगेडियर सैनी और दूसरा है सुमित चेत्रा. सो पहला है ब्रिगेडियर सैनी का. एंड ब्रिगेडियर सैनी वो डॉक्टर थे, स्वयं डॉक्टर थे और आर्मी में थे. Brigadier Saini underwent a thorough investigation for a suspected cancer in 2003. It was found that he was suffering from NHL, a severe kind of cancer. NHL or non-Hodgkin's lymphoma is characterized by the production of abnormal lymphocytes, a type of white blood cell. Brigadier Saini went through the procedures. ब्रिगेडियर सैनी अंकल ऑलरेडी गुरुजी की संगत थे और वो गुरुजी के दरबार में आया करते थे जब उनको ये पता चला. पर
मुझे ये भी याद है, मैंने सत्संग सुना है कि ब्रिगेडियर सैनी ने देखा था कि गुरुजी जब अपने ऊपर मर्ज लेते थे, वो भी आगे डिस्कस किया है इन पेजेस में। तो गुरुजी किस तरह से सफर करते थे, ऑफ कोर्स फिर भक्ति से और अपनी शक्ति से अपने आप को फिर से स्वस्थ कर लेते थे। बट ओवर टाइम इट टुक अ टोल ऑन गुरुजी। और ब्रिगेडियर सैनी वो सब देखते थे, और उन्होंने गुरुजी को कहा था कि गुरुजी, मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरी बीमारी अपने ऊपर नहीं लेंगे। जैसे आप मुझे एंड्योर कराएंगे, जैसे कहेंगे मैं करूंगा, बट मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी बीमारी आप अपने ऊपर नहीं लेंगे। देखिए संगत जी, आप भक्ति देखिए, डिवोशन देखिए, ये सब सीखने की बातें हैं। सिर्फ मांगना नहीं है, मानना है। Brigadier Saini went through the procedures in R&R Hospital, New Delhi. With Guruji's blessings, he did not have any side effects from chemotherapy. The Brigadier was a constant presence in Guruji's abode, rendering seva to Guruji. Nobody could notice any trace of the debilitating effects of the disease and the aftermath of the therapies and treatments. तो गुरुजी के दरबार में ब्रिगेडियर सैनी आते रहे, वो कीमोथेरेपी उनकी चलती रही, पर जो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं उन्होंने वो महसूस नहीं किए, गुरुजी ने वो महसूस नहीं होने दिए, और सैनी अंकल अपनी सेवा करते रहे। विद गुरुजीज ब्लेसिंग्स, दिस एग्जामिनेशन जो 2004 में दोबारा एग्जामिनेशन हुआ, with Guruji's blessings, this examination showed negative results and he was saved from another round of chemotherapy. Brigadier Saini survived the cancer without much problem and without the cancerous growth regenerating till his last years. Brigadier Saini अब गुरुजी के चरणों में है, there is no doubt about it, but महाराज ने उनको सफर नहीं करने दिया। और जो नॉर्मली ऐसे जब डायग्नोज होने के बाद एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, वो सब हमने ब्रिगेडियर सैनी में नहीं देखे, और ना ही उनमें वीकनेस आई। अगला सत्संग है सुमित जेथरा का, हु इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये दिल्ली से हैं। और इसमें लिखा है, इन 1998 सुमित एट द यंग एज ऑफ 24 was diagnosed with neuroblastoma, a malignant cancer. Such a type of cancer is found in young children when they are 3 or 4 years old, but Sumit got it when he was 24. The young adult was in the darkest hours of his life. Depression engulfed him. So, जैसा नॉर्मल एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ होगा, जब ये उनको पता चला इतनी यंग एज में, और किस तरह का कैंसर था, उनको बताया गया था कि उनके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो नेचुरली ये सारी भावनाएं उन्होंने एक्सपीरियंस की। सुमित भी गुरुजी के दरबार जाते थे, उनके पिताजी और पूरी फैमिली गुरुजी के दरबार में जाते थे पहले से। Sumit mentioned about his sufferings, to which Guruji said, sorry, I am not sure here कि जेथरा फैमिली पहले से गुरुजी के दरबार में आते थे या अपने सुमित की बीमारी को लेके वो गुरुजी के पास आए थे। मैंने सुने हुए हैं सत्संग, बट राइट नाउ आई डू नॉट वांट टू से एनीथिंग विच मे नॉट बी करेक्ट। सो सुमित मेंशन्ड अबाउट हिज सफरिंग्स, टू विच गुरुजी सेड, कल्याण किता, आई ब्लेस्ड यू। देखिए, वो उन्होंने उनके दरबार में आए और उन्होंने बताया, और गुरुजी ने कहा कल्याण किता। मुझे यहाँ एक और बात याद आ रही है, गुरुजी वांट्स ऑल ऑफ अस टू बी ऑनेस्ट एंड प्योर। और गुरुजी ये भी चाहते थे, मुझे जलंधर डेज से याद है कि जब गुरुजी के पास जाते थे, गुरुजी पूछते थे, हाँ किदा आया, क्यों आए हो? तो कई बार जो संगत थी वो सिर्फ कहना शुरू कर देती थी, नहीं गुरुजी बस तुहानू मिलन आए। पर गुरुजी को पता था वो क्यों आए हैं, और गुरुजी फिर उस वक्त कल्याण नहीं करते थे। उनको कहते थे, ठीक है आया, मैंने मेरे दर्शन करना आया तो बैठ के मेरे दर्शन कर। गुरुजी ऑलवेज वांट्स अस टू बी ऑनेस्ट एंड प्योर, और जो तकलीफ है अपनी बताइए गुरुजी को, चाहे अपने दिल में, बट गुरुजी को बताइए, किससे छुपाएंगे? एंड गुरुजी डज नॉट बिलीव कि आप इधर उधर की बातें करें, ये मैंने खुद देखा है। सो
Guruji blessed him immediately. क्या गुरुजी ने देखा? गुरुजी also always felt, उनको लगता था कि आगे जब इंसान की बहुत जिम्मेवारियां हैं या आगे अगर मैं ये मेहर कर दूंगा तो इस पर्सन का जीवन आगे बहुत खुशनुमा हो सकता है। तो गुरुजी मेहर करते थे, इमेंस कृपा इमीडिएटली कर देते थे। And here he said, Kalyan Kitta, I blessed you. Sumit felt assured by the divine love and affection of Guruji. He became a regular at Guruji Darbar, savoring the daily dose of the blessed Chai Prasad and Langar Prasad. To everyone's surprise, Sumit's road to recovery was quite fast. देखिए, बहुत जल्दी सुमित इस बीमारी से बाहर आ गए। वो गुरुजी के दरबार आते रहे और गुरुजी के कल्याण करने के बहुत तरीके हैं। चाय प्रसाद, लंगर, सिर्फ गुरुजी के दरबार में बैठना, गुरुजी की निगाह से हम ठीक हो जाते हैं। गुरुजी के अंदर से जो एनर्जी निकलती है, उससे हम ठीक हो जाते हैं। सो ये सब हमें सुमित जेत्रा के सत्संग से पढ़ने को समझ आ रहा है। अब बता रहे हैं ये बुक तो जब लिखी गई थी, now nearly a decade and a half has elapsed and Sumit is leading a perfectly normal life. He got married, has twins and has been leading a well settled professional life. देखिए, नॉर्मली डॉक्टर्स कहते हैं a patient of cancer should not get married, should never have children. पर गुरुजी ने सभी थ्योरीज को रॉन्ग, गलत प्रूव कर दिया और ये सारी खुशियां हमें जीवन में जो होनी, हम जिनसे हमें खुशियां मिलती हैं, वो गुरुजी ने सुमित जेत्रा को दी। अगला टॉपिक है गुरुजी नोज नो वर्बल रेंडरिंग स्वो मोटो ब्लेसिंग्स। इसका मतलब है कि ये पेज 107 का लास्ट पैराग्राफ है एंड इसमें बताया है कि गुरुजी ब्लेसेस विदाउट बीइंग टोल्ड। गुरुजी को बताने की जरूरत नहीं, बिना कुछ कहे गुरुजी कल्याण करते हैं और आगे जो सत्संग हैं वो उसी भावना को दर्शाते हैं। The omniscient Guru does not need the suffering individual's actual verbal rendering of the accounts of his suffering. He knows, he understands, he is aware of your sufferings, every knowledge possible. तो इन बताया गया है कि गुरुजी को सब पता है, हर चीज हमारी लाइफ के बारे में क्या हो चुकी है, क्या हो रही है। हम जब दरबार में आए हैं तो कौन सी भावना, कौन से थॉट्स लेके आए हैं, सब कुछ गुरुजी को पता है। सो देयर इज नो नीड टू से। तो यहाँ पे जो सत्संग बताए गए हैं, एक है मिस्टर चिन्ना का, ब्रिगेडियर सैनी की वाइफ का, गायत्री सबरवाल हैं गुड़गांव से उनका, एंड मेजर जनरल दीपक मल्होत्रा का। मिस्टर चिन्ना का सत्संग है इज अबाउट ब्लैडर कैंसर और इनको गुरुजी ने पान के पत्तों से उनका कल्याण किया। तो जैसा राहुल अंकल ने बताया कि गुरुजी की जो टूल्स हैं, हीलिंग टूल्स, कल्याण करने के अलग अलग तरीके हैं, वो सब यहाँ बताए गए हैं। वेरी फ्यू सत्संग्स आर मेंशन्ड हियर और राहुल अंकल ने ये भी बताया है इस चैप्टर के एंड में कि बहुत और सत्संग हैं पुरानी संगत के, नए संगत के, जिनके बारे में उनको ज्ञान नहीं है और वो उनकी ये भी इच्छा है कि वो सभी सत्संग डॉक्यूमेंट हों, गुरुजी की मेहर डॉक्यूमेंट हो। सो पहला है मिस्टर चिन्ना का। he was Mrs. Joga's father. Mr. Chinna was a retired civil servant. They were visiting Jalandhar Mandir at regular intervals to have Guruji's darshan. One day, Mr. Chinna was ordered to get betel leaves, costing ₹51. When the betel leaves were fetched from the market, Mr. Chinna was ushered into the operation room and asked to lie down. Guruji put the betel leaves on different parts of Mr. Chinna's body and told him that he had operated upon him. Now, Mr. Chinna तो गुरुजी के दरबार में सिर्फ उनके दर्शन करने गए थे। वो उनकी बेटी मिसेस जोगा के फादर थे मिस्टर चिन्ना और वो रेगुलरली गुरुजी के दरबार में जाते थे। पर एक दिन गुरुजी ने उनको कहा 51 रुपए के पान के पत्ते लाओ और जब वो लेके आए
तो गुरुजी ने उनको, जो गुरुजी का कमरा था जहां गुरुजी हीलिंग करते थे, जिसको गुरुजी ऑपरेशन रूम कहते थे, मिस्टर चिन्हा को कहा आप लेट जाइए, और उनके शरीर पे वो पान के पत्ते गुरुजी ने लगा दिए और उनको कहा कि मैंने तेरा ऑपरेशन कर दिया है। संगत जी, चिन्ना अंकल सोच रहे थे कि मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं, उनका परिवार भी सोच रहा था, पर गुरुजी ने बीमारी के आने से पहले ही उनका कल्याण कर दिया। After a couple of days, Mr. Chinna passed blood in his urine and he was diagnosed with bladder cancer. A surgery procedure was done to remove the cancerous part, but he recovered fast and the cancer never came back. देखिए संगत जी, कुछ दिनों बाद पता चला, जब चिन्ना अंकल ने अपने यूरिन में ब्लड निकला, फिर जब डॉक्टर्स को दिखाया तो पता चला कि अंदर कैंसर है। ऑपरेशन किया डॉक्टर्स ने और वो कैंसर वाला हिस्सा निकाल दिया। पर गुरुजी की मेहर से चिन्ना अंकल की रिकवरी बहुत अच्छी और बहुत जल्दी हुई। एंड मिस्टर चिन्ना's कैंसर was pre-diagnosed by गुरुजी, मतलब उनको स्वयं कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई कि वो डॉक्टर के पास जाते। उससे पहले गुरुजी ने उनको बताया नहीं क्या प्रॉब्लम है, बट उनका कल्याण कर दिया। By Guruji's blessings, Mr. Chinna was able to make a full recovery and lived a normal and healthy life for a long time. Sangat ji, you know, I also said, मैंने शुरू में कहा था that these pages, जितने भी सत्संग यहाँ शेयर किए हैं, they have humbled me in such a way that my heart is full of shukrana to Guruji, because every satsang that is mentioned here, चाहे बीटल लीफ का है, चाहे लोटा का है, चाहे नदर का है, चाहे सिर्फ कल्याण कित्ता, और इवन अबाउट द डिसेबल्ड चाइल्ड, एवरी सत्संग जो इन पेजेस में है, गुरुजी हैज ब्लेस्ड मी विद ईच वन ऑफ दोस। तो इसको कोइंसिडेंस नहीं कह सकते। आज मुझे जो रीडिंग गुरुजी ने दी है, एक बार फिर मुझे मौका दिया है कि मैं उन सभी ब्लेसिंग्स का, गुरुजी का शुक्राना कर सकूं। And only a person who has gone through this will understand what Guruji's healing means. I mean, the words are never enough to thank him. अब देखिए, दे सत्संग्स अलग अलग लोगों के हैं, और all these Guruji has blessed me with. So you can imagine, and that is also the reason why Guruji ने भर के blessings दी, और गुरुजी ने इतनी early on in life, he took me in his sharan, because he wanted me to have a beautiful life, healthy life, and a happy life. And I'm experiencing each one of those things. I may not have time to connect each satsang to myself, but I want to tell you that every satsang here I have experienced his blessings, I've experienced his kripa. So thank you so much, Guruji. The next satsang is about Brigadier Saini's wife. Mrs. Saini was suffering from cervical spondylosis, and इनका गुरुजी ने चम्मच से कल्याण किया। When Brigadier Saini was posted at Jalandhar cantonment, Mrs. Saini, excuse me please. When Brigadier Saini was posted at Jalandhar cantonment, Mrs. Saini developed the problem of cervical spondylitis. Being a doctor himself, the best treatment and physiotherapy were given to her, but there was minimal improvement in her condition. The problem persisted till 1996. One fine evening, when the brigadier returned from the hospital to Guruji's abode in the house of Lieutenant General Ahuja, Guruji told him that he had cured Mrs. Saini of her ailment. Brigadier Saini learned that Guruji had treated Mrs. Saini by applying his trademark procedure of the kitchen spoon.
Guruji had gently run a spoon on Mrs. Saini's body, and her pain and discomfort of old age spondylitis had disappeared instantaneously and never returned. तो यहाँ भी बिना बोले महाराज ने मिसेस सैनी का कल्याण कर दिया और उनको भी नहीं बताया। जब ब्रिगेडियर सैनी गुरुजी के एक बार गुरुजी ने उनको बुलाया एक दोपहर को और बताया उन्होंने किस तरह से सैनी आंटी का कल्याण किया। एक चम्मच से उनके जो प्रॉब्लम थी उनको सर्वाइकल स्पॉन्डोलोसिस की जो बहुत लोगों को हो जाती है और खास करके जैसे उम्र बढ़ती है कई लोगों को हो जाती है। तो महाराज ने वो जो चम्मच उन जगह पे लगा के उनका कल्याण कर दिया और वो प्रॉब्लम उनको कभी भी और इमीडिएट रिलीफ मिला, उसी वक्त उनको रिलीफ मिला और वो प्रॉब्लम कभी दोबारा नहीं आई। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू मी in Gurdaspur the first day. My problem was also with the lower back, but I will not go into it today. But just I want to say everything when I'm reading these pages, जब मैं ये पढ़ रही थी और पढ़ रही हूँ, वो सारी मेहर मेरी आंखों के सामने एक मतलब रील की तरह घूमती है। और इवन जो मिस्टर चिन्ना का पान के पत्तों का कल्याण गुरुजी ने मेरा किया था जलंधर में, जब बिल्कुल प्री डायग्नोसिस गुरुजी को सिर्फ मिलने गए थे जलंधर और गुरुजी ने अपने आप स्वयं पान के पत्ते ले आए। ही नेवर टोल्ड मी टू ब्रिंग एनी पान के पत्ते बिकॉज मैं दिल्ली से गई थी जलंधर तब अपनी मदर को लेके। ही प्रोबेबली रियलाइज वेयर विल शी गो एंड ब्रिंग द पान के पत्ते। वो खुद पान के पत्ते लेके आए किचन से और मुझसे पूछा कि कुछ कोई प्रॉब्लम है। मैंने कहा मुझे नहीं है, बट देयर वाज अ प्रॉब्लम। और गुरुजी ने पान के पत्तों में मंत्र डाल के बहुत बहुत ब्लेसिंग दे के मुझे कहा कि जिस जगह पे तकलीफ थी मुझे कहा वहां रख लो। और संगत जी 10 साल बाद मेरा उस चीज का सर्जरी डॉक्टर्स ने किया एम्स में, और वो भी गुरुजी ने प्लान किया एम्स में। हम हैदराबाद में थे पर गुरुजी मुझे एम्स लेके आए 99 में। 10 साल बाद मेरी सर्जरी हुई उस चीज की और डॉक्टर्स ने तब कहा कि मैम अब आप ये निकाल दीजिए नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। सेल्स आर चेंजिंग कलर का हम समझ आते हैं व्हाट इट मीन्स। सो अगेन प्री डायग्नोसिस एंड even what I mean every satsang here is a personal experience and there is no coincidence that I am reading these pages. अगला सत्संग है गायत्री सबरवाल आंटी का गुड़गांव से। इनका एक सिस्ट था आंख के पास जिसको गुरुजी इन्होंने कुछ नहीं बताया आंटी ने, और गुरुजी ने केवल अपनी मेहर भरी निगाह से उसको ठीक कर दिया। आई विल रीड फ्रॉम द बुक। Gayatri discovered that a cyst was forming near her eye. Doctors advised a surgical procedure to remove it. The problem was never broached to Guruji. मतलब गुरुजी को बताया नहीं गया था इसके बारे में। But one day, while she was about to take permission to leave from Empire Estate, Guruji looked at her intensively, focusing on her cyst-affected eye. Gayatri understood the intent of the omniscient Guruji. For his intense gaze, the cyst disappeared the next morning. देखिए एक सिस्ट उनके आंख के पास हो रहा था और गुरुजी ने जब वो आज्ञा लेने लगी, गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया, तो गुरुजी ने उनको एक नजर से देखा। और हम सभी संगत जो गुरुजी को मिल चुके हैं इस ह्यूमन चोले में, ह्यूमन अवतार में, वी हैव एक्सपीरियंस दैट गेज ऑफ गुरुजी। हमने देखा है कि और हम समझ जाते थे जब गुरुजी उस तरह देखते थे कि किसी का कल्याण हो रहा है, और मैंने स्वयं भी ये एक्सपीरियंस किया है। एंड अबाउट द सिस्ट, आंटी के आंख के पास था, मेरी पीछे नेक में इधर था, और ये कल्याण महाराज ने महासमाधि के बाद किया। किस तरह किया इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, बट ऑन हिज ओन अपना चोला देके और मेरी गर्दन में दुपट्टा बांध दिया। अगले दिन मैंने डॉक्टर के पास जाना था, गुरुजी ने पहले ही मेहर कर दी थी विदाउट मी टेलिंग हिम। सो अगला है मेजर जनरल दीपक मल्होत्रा, नई दिल्ली से हैं, और जनरल मल्होत्रा का सत्संग इज ऑल्सो गुरुजी ने उसी चम्मच से गुरुजी ने उनका कल्याण किया था। मेजर जनरल
Deepak Malhotra was also suffering from low back pain. The general was suffering from low back pain for several years. He could not sit down and get up from chairs without undergoing pain and difficulties. But Malhotras ने इस बारे में गुरुजी को बिल्कुल नहीं बताया था. एक बार the general got a call from Guruji telling him to come to his abode for he wanted to cure him of his back problem. When he reached Guruji's place, Guruji ordered to get a kitchen spoon and ran it on his spine. After the procedure, he patted his back and told him that he had cured his pain. Thereafter, General Malhotra did not experience any back problem of any kind. So, यहाँ भी गुरुजी ने उनको अपने दरबार में बुलाया दोपहर को नॉन संगत टाइम, और उस किचन स्पून से जिसका जिक्र बहुत बार हुआ है, गुरुजी ने वो स्पून उन जनरल मल्होत्रा की बैक पे घुमाया और उनको कहा कि मैंने तेरा कल्याण कर दिया. और उसके बाद जनरल मल्होत्रा को वो पेन, वो तकलीफ कभी नहीं हुई. जिनको होती है उनको पता है उठने बैठने में कितनी तकलीफ होती है. इट इम्पैक्ट्स आवर लाइफस्टाइल. खुशी चली जाती है जीवन से जब हम किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम से गुजरते हैं. और गुरुजी हमेशा चाहते थे कि उनकी संगत खुश रहे, और उन्होंने पूरा अपना जीवन अपनी संगत पे निछावर कर दिया, संगत की खुशी के लिए, संगत का कल्याण करते हुए. ये सभी सत्संग हमें इस बात का बताते हैं. एंड हियर ऑल्सो the low back pain and the spoon I experienced in Gurdaspur, Guruji's meher. अगला जो 109 पेज पे जो लास्ट पैराग्राफ है, उसका टाइटल है मटेरियलाइजेशन एंड हीलिंग. द लास्ट पैरा इज मटेरियलाइजेशन एंड हीलिंग. यहाँ पूनम सेठी आंटी का सत्संग है, एंड शी वाज अ लेक्चरर हिंदू कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी की. और उन्होंने पूनम आंटी को ब्लेस करके, जो सेठीज थे, वो उनको बहुत साल से बच्चे की इच्छा थी पर उनका बच्चा नहीं हो रहा था. तो इसी आशा से वो गुरुजी के दरबार में आए थे, एंड गुरुजी ब्लेस देम नॉट ओनली विद वन सन बट अ सेकंड सन ऑल्सो. और पूनम आंटी ने और उनके हस्बैंड ने बहुत सारी ट्रीटमेंट्स करवाई थी, मेडिकल ट्रीटमेंट्स, बट उनको कोई फायदा नहीं हो रहा था. The Sethis were married for 7 years, and though they were trying to have a baby, they were not able to conceive. They underwent a series of intrauterine insemination procedures, but nothing worked. By that time, they had the opportunity of coming to Guruji's Darbar at Empire Estate. Guruji blessed them with his usual byline, Kalyan Kitta, I blessed you. And this time, the treatment worked. Poonam's pregnancy test revealed positive results. In due course, the Sethis had a lovely boy. तो पहले जो ट्रीटमेंट चल रही थी उनका कोई फायदा नहीं हो रहा था. अब गुरुजी की मेहर से, जब गुरुजी ने कहा कल्याण किता, गुरुजी की मेहर से वो ही ट्रीटमेंट के रिजल्ट पॉजिटिव आ गए, एंड दे वर ब्लेस्ड विद अ सन. उसके बाद सेठीज गुरुजी के दरबार जाते रहे, और गुरुजी आंटी को कहते रहे एक और मुंडा ले ले आंटी. But Poonam aunty was not yet prepared, because she, working lady के साथ एक बच्चे को पालना ही काफी मुश्किल होता है. बट बार बार गुरुजी के कहने पर देन पूनम आंटी ने कहा, गुरुजी जैसे आपकी मर्जी. तो गुरुजी ने उनको एक और बेटे से नवाजा. अगला टॉपिक है स्पिरिचुअल हीलिंग टू कनेक्ट पीपल विद गॉड. इन पेजों में पेज 110 और 111 में गुरुजी's एम वाज टू कनेक्ट पीपल विद गॉड. इन सभी हीलिंग्स के थ्रू और अपने दर्शन देने के थ्रू, अपने अपने फोल्ड में लेने के का जो गुरुजी का एम था, वाज कि परमात्मा से कनेक्ट करना हम सबको, टू मेक देम अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड. गुरुजी यूज्ड स्ट्रेंज वेज टू हील पीपल. he actually does not need any talisman लिखा है, मतलब किसी प्रकार का उनको पदार्थ नहीं चाहिए. ये सारी बातें जो लिखी हैं टूल्स, actually he does not need. He has the power to heal on his own without any of these things. But इन चीजों का इस्तेमाल क्यों किया गया, बताया है कि his aim was to ignite the spiritual connection
and the connection with God. So इन्हीं पेजेस में बताया गया है कि गुरुजी ने बताया है कि फेथ और श्रद्धा में क्या फर्क है, कि और जो गुरुजी की मेहर होती है वो हमारा हक नहीं है, वो गुरुजी की मेहर है. So divine grace is not earned as a right, it is earned by devotion. And ये भी बताया गया है कि why Guruji doesn't end the suffering of in the blink of an eye. कि क्यों गुरुजी हमारी जो तकलीफ है, हमारी सफरिंग है, एक चुटकी में क्यों नहीं ठीक कर देते. और जो फिलॉसफी, कर्मा की फिलॉसफी है, वो किस लिए होती है, उसका क्या असर होता है, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए होता है, और वो सिर्फ सफरिंग के बाद आता है. ये भी इन पेजेस में बताया गया है. और ये भी कहा गया है कि हर इंसान की कार्मिक जर्नी और स्पिरिचुअल जर्नी अलग है, और इसीलिए हम सबके स्पिरिचुअल लेवल्स भी अलग हैं. ऑल आवर स्पिरिचुअल लेवल्स आर डिफरेंट, और इसीलिए महाराज की कृपा किसी की जल्दी होती है, किसी की देर से होती है, और अलग अलग तरीके से होती है. और इन सभी चीजों का एक ही डेस्टिनेशन है. द एम इज फॉर आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ. सो I will, read. Yes, so लिखा है the power. गुरुजी ने कहा है कि I do not need to do anything to cure people. The power of divinity is enough to cure people with the right kind of approach. ये बहुत important words हैं कि जो परमात्मा की शक्ति है वो ही केवल काफी है, और उसके साथ हमारे तरफ से क्या चाहिए वो लिखा है. The power of divinity is enough to cure people with the right kind of approach, devotion, connection with the divine, shraddha, and a positive attitude. The mental frame of humanity today is such that it needs a remedy to create the positive balance, the right connection to get cured. तो गुरुजी ने लिखा, बताया है कि ये जो हमारी तरफ से क्या जरूरत है इस करिश्मा को काम करने के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए, कि हम में श्रद्धा होनी चाहिए, डिवोशन होनी चाहिए, प्रभु के यकीन होना चाहिए, वो ट्रस्ट चाहिए. बट क्योंकि हम इंसान हैं और क्योंकि एकदम ये सारी चीजें नहीं हो जाती, तो हमारा जो माइंड को पॉजिटिव करने के लिए, पॉजिटिव इमोशंस को जागृत करने के लिए, ये सारी चीजें, ये टूल्स गुरुजी ने इस्तेमाल किए कि हम इंसान सोचे कि हमारे साथ कुछ हुआ है, हमारे साथ गुरुजी ने कल्याण किस तरह से किया है, वो चीजें हमें पॉजिटिव इमोशंस देती हैं. एंड उसके दौरान ऑल्सो गुरुजी वुड इन्वॉल्व द पीपल. इन चीजों लिखा है, the methods gradually put the suffering soul in the realm of doing something for themselves, and they own up the process. By the time the treatment is over and the ailment is cured or the misery or affliction is lessened, the suffering soul would have established a reasonable degree of connectivity with the Supreme Self. That is the ultimate goal of the divine incarnate, to connect people to the Godhead. Guruji said, ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਆਇਆ. I have come here to connect people with God. So गुरुजी ने यहाँ कन्वे किया है कि जब लोग स्वयं इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में, इस हीलिंग के प्रोसेस में, जैसे कॉपर लोटा फॉर एग्जाम्पल, गुरुजी ऑल्सो ब्लेस्ड मी विद दैट. और जब मैं रोज उसको साफ करती हूँ, पानी भरती हूँ, पीती हूँ, all the time I am thanking Guruji. I am expressing my gratitude to Guruji. और उसके साथ साथ क्या होता है, परमात्मा की मेहर में हमें यकीन होता है और हमारा शुक्राना निकलता है परमात्मा के लिए. तो गुरुजी ने यही बताया कि जब मैं लोगों को इन्वॉल्व करता हूँ इस हीलिंग प्रोसेस में, तो मैं उनका उद्धार कर रहा हूँ, ना केवल फिजिकल, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहा हूँ, और उनको याद दिला रहा हूँ कि परमात्मा है. देयर इज अ सुप्रीम पावर विच इज बियॉन्ड एनी मेडिकल ट्रीटमेंट और एनी अदर. फेथ को गुरुजी ने बहुत नीचा बताया है, वो शब्द बहुत छोटा है श्रद्धा के मुकाबले में. This connection with the divinity is wrongly interpreted by many as faith. एक दिन
राहुल अंकल ने, द ऑथर ने गुरुजी से कहा, लिखा है, I in Empire State, I mentioned that the people having faith in Guruji were getting cured. जब उन्होंने गुरुजी से ऐसा कहा कि महाराज, जिन लोगों का आप में फेथ है वो सब हील हो रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं. I got the rebuke of my life from Guruji. गुरुजी ने बहुत गुस्से में उनको कहा कि फेथ की चीज होती है. What is faith? He went on to elaborate the concept of Shraddha and connection with the divinity. What I gathered is that faith is an English word which hardly connotes the all-encompassing Shraddha. तो गुरुजी ने कहा कि फेथ क्या होता है. ये सारी चीजें रिसीव करने के लिए, मेरी ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए आपको श्रद्धा होनी जरूरी है. और श्रद्धा एक वर्ड है जिसमें बहुत कुछ आता है, जैसे पहला बताया गया था, डिवोशन, कनेक्शन विद द डिवाइन, सरेंडर, ये सारी चीजें एक वर्ड श्रद्धा में आती हैं. It is a combination of the acceptance of divinity, connection with divinity, surrender to divinity, sincerity of seeking divinity, and the absence of doubts in the rational mind. No kintu parantu, no ifs and buts, and a positive frame of mind. The word faith fails to denote or express the broad canvas of Shraddha. देखियो कितनी खूबसूरती से गुरुजी ने बताया है कि मैं अपनी संगत को चाहता हूं कि वो मेरे में श्रद्धा रखें. फेथ तो एक अंग्रेजी का शब्द है जो बहुत ही छोटा है श्रद्धा के मुकाबले. और ये सारी चीजें जो लिखी हैं, गुरुजी में यकीन, किसी प्रकार का डाउट ना होना, और महाराज से कनेक्शन रखना. जो गुरुजी कहते हैं, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन रखो, थोड़ा समय मेरे साथ गुजारो, मुझ पे यकीन रखो, मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ, और बार बार उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है. मैं सुनता हूं, मैं याद रखता हूं, पर कब किसका कल्याण होना है मुझ पे छोड़ो. ये सारा जो यकीन है, ये सब श्रद्धा में आता है. और गुरुजी चाहते हैं कि हम उनकी संगत, उनमें श्रद्धा रखें. एंड सो लेट्स not I think henceforth, let's try and move away from the word faith. Let's not tell ourselves that I have faith in Guruji. No, let's walk the destination of Shraddha. हमें श्रद्धा की ओर बढ़ना है, गुरुजी में श्रद्धा की ओर बढ़ना है. So अगला जो important aspect है कि divine grace is not earned as a mere as a matter of right. कि अगर हम गुरुजी के दरबार में आते हैं, गुरुजी के दर्शन मिलते हैं, उनका हम प्रसाद मिलता है, उससे हमें ये हमारा हक नहीं हो जाता कि हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले. और गुरुजी ने बताया है, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. क्योंकि बहुत बार संगत कहती है, हम तो बहुत देर से आ रहे हैं पर हमारा हमारा काम नहीं बन रहा. और पहले भी गुरुजी के दरबार में कई लोग बहुत देर तक आते थे, उनकी बात नहीं बनती थी, उनकी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होती थी. और कोई पहली बार आया और गुरुजी ने कल्याण कर दिया, तो वो लोग भी सोचते थे. So this is what Guruji says, the divine grace is not earned as a matter of right. आप किस भावना से आ रहे हैं? क्या आपके मन में किंतु परंतु चल रहा है? क्या आप ट्राई करने आए हैं? क्या आप गुरुजी को टेस्ट करने आए हैं? या आपका जो अंदर से भावना है, आप तैयार नहीं है अभी, आपका सोल प्योर नहीं हुआ, आप में वो प्योरिटी नहीं आई, शुद्धि नहीं हो रही आपकी, आप सच्ची भावना से नहीं आ रहे वहां. आपका जो so many things are involved. एंड इसमें लिखा है, गुरुजी ने ही कहा है that you have to earn the divine grace, not demand it. मंगदे नहीं, मंदे ने. Never ask for divine grace, earn it by devotion. Such a beautiful thing कि अपनी डिवोशन से, अपनी श्रद्धा से उस ग्रेस को प्राप्त करो, मांगो नहीं. If the Godhead is capable of curing the mental and physical ailments with the blink of an eye, the rational mind may be wondering why this standard is not applicable to all suffering individuals. Why are there so many methodologies and so many remedies? So ये भी है, ये कई लोग जिनको यहाँ पे राहुल अंकल ने ये क्वेश्चन आंसर किया है कि क्यों कुछ लोगों के दिमाग में ये
प्रश्न आता है कि इन सब चीजों की क्या जरूरत है, क्यों गुरुजी या जो बाकी एनलाइटेंड सोल्स हैं वो क्यों अपने जो भक्त हैं उनको सफरिंग एंड्योर करने देते हैं। एंड the Guru can lessen our sufferings and lead us from the morass of darkness, confusion, hopelessness, and helplessness to the path of spiritual awakening. He holds our hand by awakening the latent godliness in each individual to guide the soul to connect with the Supreme Soul. The process may be instantaneous or a lengthy one, depending on the karmic earnings and spiritual levels and moorings of individuals. So यहाँ बताया गया है कि क्यों गुरुजी, दोबारा से रेपिटेशन है कि क्यों गुरुजी अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, क्यों गुरुजी एकदम ठीक नहीं कर देते सबकी प्रॉब्लम्स, क्यों हमें सफरिंग करनी अनुभव करनी पड़ती हैं, एंड्योर करनी पड़ती हैं, क्योंकि इनके थ्रू महाराज हमारी कार्मिक जर्नी को टाल रहे हैं और हल्का कर रहे हैं और हमारी आध्यात्मिक जर्नी को भी आगे ले जा रहे हैं। और कई लोगों में तो ये एकदम हो जाता है, कई लोगों को एकदम ऐसा ज्ञान हो जाता है, और कई लोगों को, मोस्ट ऑफ अस वी टेक टाइम टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ गुरुजीज हीलिंग्स, कि ये इनमें सब हमारा ही कल्याण है। और गुरुजी हम उस परमात्मा के he's taking us on that journey to, that is the destination, to merge with that Paramatma. तो उस जर्नी में हमें अपने आप की शुद्धि करनी है और अपने जो कर्म है, हमारी कार्मिक जर्नी है, उसको हल्का करना है, और इसी सफरिंग से हम हल्का करते हैं और हमारी अंदर ज्ञान जागता है। So the next is, it also talks about the importance of modern medicine and the human efforts. The divine intervention is not a substitute for medical treatment. It is to heal the suffering souls and lead them towards spiritual growth. So यहाँ गुरुजी ने बताया है कि मैं डॉक्टर्स को रिप्लेस करने नहीं आया, मैं कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चलाने नहीं आया. This is just to uplift the souls. Or one of the important things to read here is, yes, Guruji's mission is not to become a super doctor to cure people of diseases and ailments. He used to say he was neither a super doctor nor a super magician or a Jyotish who tells the past, present, or future of individuals. He was beyond all these ascribes. It was through the empathy of the elevated soul with the suffering humans that he invokes the supernatural powers of healing. तो देखिए गुरुजी ने खुद कहा कि ना तो मैं कोई डॉक्टर हूं, ना मैं डॉक्टरी इलाज करने आया हूं, ना ही मैं कोई जादूगर हूं, और ना ही मैं ज्योतिष हूं. He is beyond all this, much above all this, and we have realized this over time. और यही अवेकनिंग है, यही ज्ञान हम सबको देना चाहते हैं, और इन पेजेस के थ्रू राहुल अंकल हमें बता रहे हैं कि गुरुजी का मिशन क्या था, और हम सबको अपनी शरण में लिया है, अपने फोल्ड में लिया है. सो वी आर सो फॉर्चुनेट कि ना केवल गुरुजी ने हमारी शारीरिक और मानसिक कष्टों का निवारण किया, बल्कि हमारी आध्यात्मिक जर्नी भी गुरुजी ने शुरू कराई. एंड ही इज इम्प्रूविंग अस, ही इज helping us to improve ourselves every day. He's encouraging us to be the good human being, the changa banda. He only said change karam karo, changa banda bano, sara karmadai khele. And through all this, our evolution, spiritual evolution is happening. The last and very important aspect is absorbing the pain of suffering individuals. So this is page 113. और इसमें the author talks about how Guruji would absorb the pain of suffering individuals. और उसमें ये भी लिखा है that not all saints can do that. They neither have the ability or powers, nor do they have the permission from the Supreme Being. कि गुरुजी ही केवल उनमें वो शक्ति थी
जो अपने ऊपर दूसरों का मर्ज अपने ऊपर ले सकते थे। सभी संतों को ये ना ही आदेश है और ना ही उनमें वो काबिलियत है कि वो ऐसा कर सके। और यहाँ पे बाइबल का भी एक कोट बताया गया है, सो आई विल रीड. It has been seen that sometimes Guruji used to fall sick after curing some devotees of a fatal or chronic disease. तो जब कोई मर्ज बहुत ही गंभीर होता था या जो पर्सन था उसने सरवाइव नहीं करना था, जीवित नहीं रहना था, तो मेहर करके अपनी मौत से गुरुजी अपने ऊपर वो मर्ज ले लेते थे एंड फिर वो सफर भी करते थे. He used to say that not all sundry sages or saints can cure people of the diseases by taking the diseases upon themselves. Only a highly evolved Satguru can attain such powers. He used to say, महापुरुष ਦੇ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. To translate this into English, Guruji said, there are levels of Mahapurush, and the one who takes the disease on himself is the Sadguru. So he is the supreme being. He has revealed in so many ways, which the understanding of which is now dawning upon most of us. And he also said, हर कोई लोकां दा मर्ज अपने ऊपर नहीं ले सकता, उन्हें उन्हां नू हुक्म नहीं है. That no, not everybody, not all saints, all sadhu babas cannot take the suffering on themselves. They too have healing powers, but limited ones. और उनको ना ही आदेश है, सुप्रीम पावर का आदेश नहीं है उनको ये सब करने का. हर जो फेथ हीलर है, हर जो ऐसे संत साधु हैं जिनमें शक्ति है हमारे दुख कम करने की, वो बहुत लिमिटेड है और वो उसी में सीमित रह जाते हैं. कई बार आगे ये भी लिखा गया है कि कई बार वो संत उस पावर का गुमान करने लगते हैं, तो कई बार तो वो पावर उनसे ले ली जाती है, जो शिव पुराण में भी हमने पढ़ा है, और कई बार वो सिर्फ उसी लेवल तक रह जाते हैं, उनका आगे एवोल्यूशन नहीं होता, वो अपनी पावर्स को बढ़ा नहीं पाते. सो here it is also highlighted that ego सबसे बड़ा मर्ज ego है, and we need to discard ego on a daily basis. We must work to discard our ego because healing and the presence of ego cannot coexist. Okay, so last में ये बताया गया है that yes, that page 113 and 14 talks about people's attitude which stems from ego and ignorance. जो कई लोग ये पूछते हैं कि गुरुजी एक चुटकी में क्यों नहीं ठीक कर देते, वो क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि उनको अभी ज्ञान नहीं है, उनके अंदर अहंकार भरा हुआ है. एंड सो उन लोगों को राहुल अंकल द ऑथर ने बताया है that how would these people respond to the gratitude of the beneficiaries of Guruji's grace. जो गुरुजी की मेहर हुई है जिन लोगों पर, जिन्होंने वो रिसीव की है, उनके भाव जो अब प्रकट होते हैं, उनके शब्दों से जो ग्रेटिट्यूड निकलता है, उसको आप कैसे समझेंगे. ये जवाब है उन लोगों के लिए जो ये पूछते हैं कि उसी वक्त क्यों नहीं ठीक कर देते, क्योंकि जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, जो हमारी वी बिकम बेटर पीपल बाय एंड्योरिंग सफरिंग, ये जवाब है उन लोगों के लिए. And finally, the author says that in this chapter, he has documented the satsangs of magical cures and healing that he is aware of. However, there would be many more that are not known to him, and he stresses on the need to codify them or to document them. So, I will read a little bit before I end. It says, why do the spiritual gurus not destroy the military might of the enemies of the nation by invoking their spiritual supernatural powers. देखिए कुछ लोगों का क्या सवाल है कि परमात्मा ये वॉर्स को क्यों नहीं एंड कर देता. हम देख रहे हैं आजकल हमारे चारों ओर किस तरह की अशांति, किस तरह की अहिंसा हो रही है, तो परमात्मा इसको खत्म क्यों नहीं कर देता. पर ये क्वेश्चन अगेन वही लोग पूछ सकते हैं
जो अभी अज्ञानी हैं, जिन पे गुरुजी की मेहर नहीं हुई, जिनकी बुद्धि पर गुरुजी की मेहर नहीं हुई. So the author talks about इन लोगों का पर्सपेक्टिव. पर अगर मैं याद दिलाऊं कि गुरुजी के दरबार में सभी आते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं, ऐसे लोग भी आए हैं और आते हैं जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं या जिनके कर्म बहुत अच्छे नहीं. और गुरुजी खुद कहते थे, मैं ते सबका कल्याण करना है, मैं आया ही इसीलिए हूं. So all of us have that godliness within us. We all have our soul, सभी का सोल प्योर है. पर कब जागृत होना है वो गुरुजी की मेहर से होगा. और वो पढ़ते कब हम अपनी हटाएंगे, वो मैल कब हम हटाएंगे, वो गुरुजी की मेहर है. और यही वो प्रोसेस है जो बहुत जरूरी है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए. So I want to end very soon. And okay, so it says, what is it about the experiential learning of thousands who redeemed from their chronic diseases and sufferings and enjoy the showering of love, compassion, positivity, and hope from the realized soul? They might not have seen God, but they realized godliness at every moment. You may put yourself in the shoes of many suffering from cancer, asthma, diabetes, infertility, and other debilitating ailments, diseases, and accompanying existential crisis of helplessness and hopelessness to realize what divine grace is all about. Guruji is the embodiment of all these and much more. So, जिन लोगों ने ये सफरिंग देखी है, आप उनकी भावना को समझिए, उनके दर्द को समझिए. और केवल उस मर्ज से जो दर्द होता है उसको नहीं, जो सारी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है उसको समझिए, उनके नजरिए से देखिए. तो फिर आप ये प्रश्न नहीं पूछेंगे. और गुरुजी, इन सभी लोगों ने ये जो ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी हैं, उनमें उनको परमात्मा नजर नहीं आया. None of us, most of us, I will say, did not see the God in Guruji, but we experienced godliness. हमने परमात्मा की मेहर एक्सपीरियंस की इन सभी प्रोसीजर्स में, इन सभी हीलिंग में. सो गुरुजी महाराज को धीरे धीरे राहुल अंकल इस बुक के जरिए हमें समझा रहे हैं. तो बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, that you guided Rahul uncle and blessed him with the thought that he needs to pen down all this. And गुरुजी तो खुद ही कह गए थे, जैसे राहुल अंकल ने पहले बताया है, कि this book is a result of Guruji's utterance and Guruji's meher on him. I know a lot more will be analyzed and said by Usha auntie. So मैं अब आज्ञा लेती हूँ. अनंतम शुक्राना गुरुजी का, आपने मुझे ये मौका दिया to handle some part of the reading of this book. Thank you very much, Rahul uncle and Suresh uncle. Thank you for this seva. Jai Guruji Maharaj. Jai Guruji. Over to you, Usha Bhasin auntie. Am I audible, uncle? Okay. जय गुरु जी. सारे सुनने वाली संगत को प्रणाम. गुरु जी नमस्ते. First of all, my heartiest congratulations to Chabilendra Rahul, who Guruji called Rahul, and we affectionately call Chabi, for this pious and reverential homage to Guruji's legacy. It's a very special publication, I would like to say, and why I say so is because this book, it places Guruji's legacy among the great Indian
tradition of spiritualism, which is diverse, ancient, erudite, and very soulfully practiced for the last couple of centuries. Therefore, our gratitude to him. It's mind broadening for the Sangat. Because, why I say so? Because thus far, please pardon me if I have limited knowledge about the publications on Guruji, but whatever books I have known or read, they are primarily about narrating satsangs, personal and maybe some more, and the personal relationship with Guruji. This book places those satsang as illustrations, not as an objective. I'm sure he would agree that his objective of writing or narrating these satsangs was not to share the satsangs, but it was to illustrate, or may I say, validate his spiritual powers. I'm using the word validate with caution because Guruji also said when he used to heal people, he also said, or when he used to mitigate the sufferings of people, he used to say, "Ek kam karan asi koi nahi aaye. Ye sada kam koi nahi." Means these are only a conduit. The ultimate goal is something else. And what is that ultimate goal? That ultimate goal is to connect you with God. And I would like to say, to connect you with your inner self, to connect you with your core, because that is where God resides. कहते हैं ना, ईश्वर तो आपके भीतर है. Therefore, it is mind-broadening and also enlightening Sangat members who have focused thus far on the physicality. Those who have, and very rightly so, when we narrate satsangs, इसका ये healing हो गया, उसका ये ठीक हो गया, तो बड़े स्वाभाविक प्रश्न आ जाते हैं कि उनका हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ? उसका कुछ संकेत तनुजा आंटी ने बहुत अच्छे से दिया है अपनी बातचीत में. But the issue is, we are probably focusing as of now, as on today, maybe my thought goes there because it hurts. The way Sangat is spreading, it's आज Guruji का युग है. It's Guruji's era. All continents, across linguistic, religious, geographical divides, it's Guruji. आप किसी से बात करिए, अमेरिका में बात करिए या एशिया में बात करिए या यूरोप में बात करिए, गुरुजी. Therefore, what is happening? Also, even in Delhi, even among Gold Sangat, with due apologies, with folded hands, I say that I don't think we are 100% following what Guruji has shown us, even for holding satsangs, and also for conducting, say, satsangs. More importantly, conducting our lives. What did Guruji want? First, let me complete about the book. This book is also, and I would say more important for many enlightened Sangat members, is that it is scholarly, research-based, thorough, thought-provoking. Hence, it makes a compelling reading for those who are keen to have greater and deeper and newer insights into spirituality. Healing people was his way of
लीडिंग देम टू स्पिरिचुअलिटी। बिकॉज देखिए, बहुत बहुत वेदना से, बहुत भावनात्मक ढंग से तनुज कपूर जी ने बांटा कि जो इंसान शारीरिक तकलीफ में से जाता है, वो और उसका परिवार, उसके प्रियजन, किस तरह से उनका जीवन बदलता है, किस तरह से उनका केवल शरीर नहीं, उनका बाहरी जीवन नहीं, उनकी भीतरी जो पूरी साइकोलॉजी, उनका मनोविज्ञान, उनकी मानसिक स्थिति सब बदल जाती है। उसका एक डायमेंशन ये है कि जब आप उसमें से गुजरते हो तो वैसी ही है जब खूब आंधी आती है, तूफान आता है, बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन जिनकी जड़ें गहरी होती हैं, those who are rooted deep, they survive. और here हमारे संदर्भ में अगर हम गुरुजी की शिक्षा की डेप्थ में अपनी जड़ें बांध के रखे हुए हैं तो हम नहीं गिरेंगे। अगर हम स्पिरिचुअलिटी में हैं, so it's quite likely that we are not going to commit regrettable mistakes. और गुरुजी ने, चूंकि किताब का तो थीम ही स्पिरिचुअलिटी है, इट्स नॉट अबाउट फिजिकल एलिमेंट्स, इट्स नॉट अबाउट अदर इश्यूज, इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, एंड विच गुरुजी एक्चुअली केम फॉर, to connect us to God, to connect us to himself, and by connecting us to our own, our inner self, as who has said, probably Aristotle, that all wisdom begins with knowing yourself. तो जब हम उस कष्ट में से गुजरते हैं तो ऐसा भी तो समय आता है ना, और वो गुरुजी करते हैं, मुझे लगता है वो जानबूझकर भी बहुत बार करते हैं, कि आपको सबसे कट ऑफ कर देते हैं। जैसे हम सब कोविड में कट ऑफ हुए, बहुत आसान उदाहरण है मेरे लिए, कि कोविड में कट ऑफ हुए तो सब रिफ्रेफ हट गया जिंदगी से, और आप घर के भीतर बैठ गए, और आप देखिए वही एक मौका था जब अधिक से अधिक लोग गुरुजी के साथ जुड़े। I must confess that was the period when churning happened within us, within me. संगत, कोई जानने वाली, उन्होंने कहा सत्संग करिए, और जब सत्संग करने लगे तो वो जो पिक्चर रिवाइंड होके दोबारा सब चल पड़ी, तो आप सोचने लग गए ये शब्द थे, इसका ये अर्थ था, या क्या था। मीन्स आप अंतर्मुखी हो गए, वरना तो हम बाह्यमुखी रहते हैं, चाहे वो अपने शरीर में है, सत्संग में है तो कैसी पोशाक, कैसा चोला, कैसी डेकोरेशन, कैसा लंगर, कैसा क्या, अधिक समय नहीं है बोलने का। लेकिन जब हम उस कष्ट में से गुजर रहे होते हैं तो कहते हैं ना, ये तकलीफ, दुख, उसका एक आयाम या एक कथन तो ये है कि जो आपके प्रारब्ध हैं, जो आप पिछले जन्म से या पिछली कई जन्मों से लेकर आए हैं, वो तो आपको काटना है प्रारब्ध, तो वो कट रहा है बीमारियों से, कष्टों से। लेकिन मुझे लगता है उसके साथ साथ आपकी अपनी इंटरनल ग्रोथ होती है, और वो जो ग्रोथ है दैट इज अनपैरेलल, वो उस तकलीफ के बिना हो ही नहीं सकती। एज दे से, मोहनदास करमचंद गांधी बापू ना बनते, राष्ट्रपिता ना बनते, अगर भारत गुलाम ना होता, अगर ये शारीरिक और मानसिक और पारिवारिक कष्ट ना हो, तो हम शायद उस रास्ते पर ना चल सकें जो गुरुजी चाहते हैं हम चलें, और वो रास्ता है स्पिरिचुअलिटी का। देखिए, उन्होंने हमें कष्टों से मुक्त होने के लिए केवल स्पिरिचुअलिटी का रास्ता दिखाया। He did not say that you chant these mantras
Why? Because he wasn't taking you on the religious path. And mantras, chanting needs perfect pronunciation and intonation. That is mandatory. हमने उसको संस्कृत जो भी कर रहे हैं हम लोग प्लेटफॉर्म्स पे उसको करके हमने उसको जो भी किया, लेकिन गुरुजी ने ये सब नहीं कहा. मुझे तो गुरुजी ने कभी ये भी नहीं कहा कि तू शिव पुराण पढ़ा कर. उन्होंने सब सबको कहा, बहुत लोगों को कहा, गिफ्ट भी दिए, सिग्नेचर भी किए शिव पुराण पे. मुझे नहीं कहा. एक बार कहा था तेरे शिव जी ने ब्याह किया, असी तो ब्याह भी कोई नहीं किया. सो इट इज his own. He did not prescribe any rituals. मंदिर ले जाते थे, दिखाते थे, कमरा दिखाते थे, चीजें दिखाते थे, बाल सुलभ मासूमियत से, इतने छोटे बच्चे की तरह, ये देखे कमरा, ये देखे. उन्होंने नहीं कहा कि तुम इसकी प्रदक्षिणा करो या जल चढ़ाओ, कुछ नहीं कहा. Because he wanted you to be led to a spiritual path. And as they say, where religiosity ends, spirituality begins. जब आप इन सब बाहर के आडंबरों से, आई विल यूज द वर्ड आडंबर, क्योंकि ये धार्मिक अनुष्ठानों के लिए हमारे इतिहास में इस्तेमाल हुआ है, जिसको लेकर देखिए आर्य समाज की स्थापना हुई है और बहुत कुछ हुआ. जब हम इन एक्सटर्नैलिटीज में भी द मोर अप्रोप्रिएट वर्ड, जब हम एक्सटर्नैलिटीज से हटकर अंतर्मुखी होते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो हम ये समझने लगते हैं कि जो गुरुजी ने तो स्पिरिचुअलिटी को कितना सुलभ, बाल सुलभ बना दिया. इतना सिंपल, साधारण नहीं. सिंपल यहाँ साधारण नहीं है. यही अंग्रेजी और हिंदी का एक तनाव है, भाषा की जो तनाव है, जो डॉक्टर राहुल ने किताब में कहा है, फेथ. आई ऑलवेज बिलीव दैट. और आज शायद किताब अंग्रेजी की है, सो मे बी इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, बिकॉज मुझे लगता है ये दिल की बातें हैं, ये भावना की बातें हैं, ये हमारी ज़मीन से जुड़ी बातें हैं, गुरुजी की बातें, गुरुजी का बखान, तो वो दिल से मेरी मातृभाषा में होना है. बट very rightfully thought, this book is in English because it is meant for the non-Sangat also. And those intellectuals, unfortunately, in India, आज भी अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व मिलता है. अंग्रेजी में छपा तो ज़्यादा अच्छा. इस किताब की बात नहीं कर रही हूँ, लिटरेचर की, आम बातचीत कहीं भी मैं नहीं जाऊंगी, लंबी बात है. लेकिन अपने दिल की बात तो अपनी भाषा में होती है. मेरी किताब की जिक्र हुआ तो मेरी पोइट्री कलेक्शन हिंदी में है, लेकिन बाकी जो करियर का जो कुछ होता है वो अंग्रेजी में होता है. तो एक बिल्कुल क्लियर डिवीजन है, दिल की बात अपनी भाषा में. सो उन्होंने वो सब नहीं किया. उन्होंने बिल्कुल सिंपल हमारे लिए चीज़ें बाल सुलभ कर दी. और वो क्या किया उन्होंने? जज नहीं करो, पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच बदलो, किसी का भला करो. अब आप पढ़ें तो बहुत जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, वसुधैव कुटुंबकम, वेदों से लेकर महाभारत, रामायण, हर चीज़ जो है उसमें क्या है? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, जीवन को जीने की कला. और वो कला जो उनका स्पिरिचुअलिज्म है ना, वो पूरा साइंटिफिक है. एज इट वाज सेड, फेथ नहीं, केवल फेथ नहीं, it is scientific. In fact, any knowledge as that you are keen to absorb is scientific. There is a science behind it. It's not because I have been a science student, but chemistry, physics जैसे है वैसे spirituality में भी साइंस है. हम उस साइंस को कितना समझते हैं वो एक अलग बात है. और ये केवल दिल की बात नहीं है. गुरुजी से लगाव, गुरुजी से प्यार. हम क्या प्यार करेंगे? हमें तो आता ही नहीं. प्यार करना तो उनको आता था, हमें तो प्यार करना भी नहीं आता संगत जी. अगर हम प्यार करें
तो हम उनकी एक एक बात नहीं, एक एक कॉमा, एक एक फुल स्टॉप अप्लाई करें, लेकिन हम नहीं करते। हम तो इतना भी नहीं करते कि हम सत्संग में केवल शब्द वाणी चलाएं। हम तो लोगों के गाने चलाते हैं, और पुरानी संगत करती है ये। गुरुजी कहते थे जज ना करो, किसी को जज मत करो। क्लियर, वेरी वेरी क्लियर, रिपीटेड मेनी टाइम्स, बट वी आर जजमेंटल। द मोमेंट वी सी समबडी, उसके कपड़े, उसकी पदवी, उसका पैसा, उसकी बातचीत, वी स्टार्ट जजिंग। और उसको जज करने से पहले, उसको कुछ कहने से पहले हम अपने मन को दूषित करते हैं, अपने विचार को दूषित करते हैं। तो पॉजिटिव सोच तो ना हुआ, जजमेंट हुई। सो उनकी एक एक बात को एक सिंपल बात नहीं है, एक सिंपल लाइन नहीं है, वो तो प्याज है, छिलके उतारते जाइए आपको और मिलता रहेगा। आप समुद्र है, गहरे गोते लगाते रहिए, आपको मोती मिलेंगे। लेकिन हम नहीं लगा पाते, हम नहीं कर पाते सब। तो असली उनका मकसद था हमें स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाना। एंड आई एम सो ग्लैड एंड ग्रेटफुल कि इस पुस्तक में वो सब बातें हुई जो शायद आज तक नहीं हो पाई थी। वो बिल्कुल नहीं हो पाई थी कि स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली गुरुजी का मकसद क्या है। आई एम नॉट टॉकिंग इन डिटेल अबाउट द बुक बिकॉज वी आर ऑलरेडी एक्सटेंडिंग द टाइम लिमिट। पर एक बहुत खूबसूरत चीज़ जो गुरुजी ने इस सब के ज़रिए हमसे की, हमें हमारे लिए की, हमें तोहफा दिया, अनेक अमूल्य तोहफों के बीच में एक तोहफा स्पिरिचुअलिटी का। Why? Because religion limits, dogmas, ritualism, all this limits, whereas spirituality liberates. And Guruji liberated us. He liberated us from so many things. Tangibly, he liberated those who were suffering from physical ailments from that disease. And not just the physical, much deeper. He liberated them. सो जो लिबरेशन से आपके भीतर जो इमोशंस आए, जो समझ आई, जो आपने उसको गहराई से महसूस किया, दैट इज हाउ ही लेड यू टू द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिज्म एंड टू कनेक्ट विद द गॉड। एंड हु इज गॉड? आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट नो। आई यूज्ड टू, आई वोंट से वर्शिप, बहुत बड़ी चीज़ है। बचपन से बोलते थे शिव जी का, और जब मुझे पहले दिन किसी ने कहा मेरे ऑफिस के कि भाई गुरुजी हैं यहाँ आए हैं कोई, चलो उधर, मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ था। सो माय फर्स्ट रिएक्शन, एज आई मस्ट हैव शेयर्ड मैनी टाइम्स, वाज आई डोंट बिलीव इन लिविंग गुरुज। माय पाथ वाज डिफरेंट, माय मेंटल स्टेट वाज डिफरेंट, माय whatever attainments, mental attainments were different। पर उन्होंने कुछ कहा शिव का, तो पता नहीं क्यों चले गए। एनीवे, असली चीज़ तो उनकी कॉलिंग थी ना। और ये नहीं कि जाते कोई मिरेकल्स हो रहे थे, ऐसा भी नहीं कि जाते कोई बीमारियां एकदम से ठीक हो गई या जो भी हुआ। There is no time, otherwise I would say it is not that simple, it's not linear, it is multi-layered, it is multi-dimensional, it is multi-dimensional, it is multi-layered। अगर उस समय कुछ एक मैंने कहा, मेरी हिस्टेरेक्टमी ड्यू थी, तो गुरुजी ने कहा डॉक्टर नहीं बदल ले, उससे मिलने गई जो आती थी। पर मैं क्या गुरुजी, उसने कहा सर्जरी कर दो। नाउ fortunately, I don't know if I was disheartened. Probably I wasn't, because I didn't stop, we didn't stop coming, and or he didn't let it happen। पर बाद की जिंदगी में, आज की जिंदगी में, अभी जो जिसमें से हम गुजर रहे हैं, वो कष्ट है, क्या बताऊं मैं आपको। लेकिन शायद इनर क्लींजिंग के यही सबसे अच्छे मौके हैं, जब आप एक्सटर्नैलिटी से टोटली डिस्कनेक्ट होकर आप उस खोज में जाते हो जो गुरुजी चाहते हैं आप वो खोज करें। वो खोज है हु एम आई, मेरे में कमियां क्या है और
Believe you me, Sangatji, Guruji guides you. He guides you phenomenally. He tells you literally कि तू ये कर ले, या तूने तब ये किया था, या तू ऐसे मत कर. जो उन्होंने उस वक्त कहा था 1 on 1, उससे भी आगे. और वो बात बार बार उभर के सामने आती है कि हाँ ये तो हाँ क्या हसीना, ऐसा भी नहीं कहते कभी ऐसा नहीं कहा, कभी नहीं जतलाया. But it definitely changes how you respond to the adversities in life. देखिए, life will always throw challenges. So, but your response changes because of him, because of his presence, because of his teachings, if we follow those teachings. और वो response बदलने के तरीके उन्होंने बहुत सिखाए. Acceptance, go with the flow. और इतनी खूबसूरती, in a very jovial manner also he used to teach कि कैसे तुमने अपने रिस्पॉन्स बदलने हैं. सो जिंदगी किसने कहा कि बेड ऑफ रोजेस है? आपको चैलेंज करती है, आपको चैलेंज करती है, और उसमें से आप कैसे गुजर जाते हो. आई वुड से अबाउट माई सेल्फ दैट बिफोर आई वी केम टू गुरुजी, yes, there were challenges. You surmounted. But the psychology and the mental response and the deeper inner feeling was different. The reasoning was different. The logic was different. Now when you go through a similarly or a very challenging situation, your responses, your feelings, your everything is different. Fortunately मेरे लिए, मैं तब भी कभी ये नहीं सोचा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. अब तो क्या ही सोचना, तो गुरु के पास है ना, उनकी शरण में है. उस वक्त भी ये नहीं आता था कि क्यों सोचा. हाँ, पर ये आता था कि चलो जी मैंने कर लिया, इसकी वजह से हुआ, ये कनेक्शन हुआ, ये हुआ, और आप लग गए प्राणपण से. लेकिन आज वो फीलिंग बिल्कुल अलग है. यू फील वो एवोल्यूशन का मौका दे रहे हैं, वो उस तरफ आपको मोड़ रहे हैं जो आपकी जिंदगी का असली मकसद है. एक छोटी सी चीज और मैं और कहना चाहूंगी, वो ये कि मुझे बहुत बार भी होता था कि जैसे होता है, द्वंद्व होता है, आप अपने भीतर से ही तो लड़ते हो ना, दैट emotionally or you are attached to somebody, then the heart and mind, there is a tussle going on between two. How to resolve that? Who is right? I think for me it was the biggest tussle. शुरू में हुई जब गुरुजी ने कहा कि किसी दा दिल नहीं दुखाओ, किसी नु ना करो. सो मुझे होता था, ये बहुत बार हुआ कि ऑफिस में जाओ, सरकार में तो देखिए जिसने काम, कहते हैं ना, काम ना करना आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है. सो नहीं काम किया किसी ने या जो भी है, तो आप कुछ कहोगे ना, प्यार से उनके दिल को तो रखने के लिए नहीं कह सकते. तो था, तो मैं एक बार किसी संगत से जो फ्रेंडली थे पूछा भी, तो नहीं, यू शुड फील बैड अबाउट इट बिकॉज इट इज योर ड्यूटी. वो आपका धर्म है, वो आपका कर्म क्षेत्र है. और गुरुजी तो कर्म प्रधान, कर्मठ बनने के लिए ही हमेशा प्रेरित करते रहे, उसी रास्ते पे चलाते रहे. आज जब वो डिलेमा होता है दिल और दिमाग का, तो गुरुजी जवाब देते. और यहाँ ही अभी जो ग्रुप है उसी में एक बहुत प्यारी संगत है. शी हैड वंस टोल्ड कि गुरुजी ने कहा कि गावा मज्जा नूं तां रब ने बुद्धि नहीं दिती है, तो बंदे नूं तां दिती है ना, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो. लेट्स नॉट मिसअंडरस्टैंड इट एंड मिक्स इट अप विद व्हाट ही सेड कि जब आओ मेरे पास अपना दिमाग जुतियां नाल बाहर छड़ के आया करो. दैट इज व्हेन वी वर इन हिज फिजिकल ऑरा, because the very vibration, the very energy of that hall used to be so different that जाने के कुछ मिनटों बाद आप एकदम मतलब क्या हो जाते थे. आज एकदम से तो ऐसा नहीं लगता. यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली
in his sharan, मन में वो चलना चाहिए, तब आपका इमीडिएट कनेक्शन बनता है, अदरवाइज समय लग सकता है। और दूसरा में वो तनुज आंटी जी ने कहा भी कि भाई किसी का क्यों नहीं हुआ, एकदम से क्यों नहीं हो जाता, तो यस, इट्स एज सिंपल। सूर्य भगवान तो सबको रोशनी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद इंसान के भीतर और बाहर अंधेरा क्यों है? बहुतों के बीच में अंधेरा है और बहुत बहुत रोशन है। सो ये सब उस पे है कि हमारा दामन कितना पाक है, हमारा भीतर कितना शुद्ध है, हमने कितना खुद पर काम किया है, हमने कितना खुद को साफ किया है, और उसके लिए गुरुजी ने रास्ते दिखाए हुए हैं। सो I think the time is up for me, and that's all I could say. In fact, it's very difficult for me to edit because it's a long journey. और सिखा रहे हैं गुरुजी, सिखा रहे हैं। वो सवाल शायद मुझे लगता है कि it may be the appropriate time and platform to share कि जब किसी ने कहा कि गुरुजी जो दुश्मन है उनकी फौज को अपनी नज़र से क्यों नहीं ख़त्म कर देते। उसके लिए एक बहुत सत्संग है जिसके 3 लोग के सामने हैं। कर्नल जोशी हैं, आई एम श्योर ही इज़ इन द ऑडियंस, माय हस्बैंड एंड मी। कारगिल वार की दौरान की बात है। और पहले मैं ये कहूँ तनुज जी कि वो मुझे लगता कोई सवाल अपनी जगह गलत नहीं होता, क्योंकि कौन इंसान किस माइंडसेट में है, उसने कैसा जीवन जिया है, उस पर क्या प्रभाव है, किसका प्रभाव है, उसकी परिस्थितियाँ कैसी हैं, बाहर की भीतर की, उसके हिसाब से वो सवाल करेगा। तो लगता होगा कि क्यों नहीं कर देते गुरुजी। इसका जवाब तो बहुत जटिल है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक जो टैंजिबल है, मूर्त है, वो ये है कि कारगिल के दौरान हमने देखा गुरुजी वैसे बात करते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे, जेस्चर्स करते थे। उन दिनों वो बिल्कुल ऐसे जो आपने फ़ोटो देखा होगा गुरुजी कैसे बैठे रहते थे, और धीरे धीरे नोटिस किया कि उनके माथे में एकदम चमत्कार, ट्रांसलूसेंट पिंक स्किन, उस पे छोटे छोटे दाग, तो वहाँ तो दूर से भी दाग पड़ा हुआ दूर नज़र आता था, तो वहाँ माथे पे आए, सिर पे आए, बाजुओं पे आने लग गए। तो हमने, और गुरुजी बात ही ना करें किसी से बात ही नहीं करते थे, मुस्कुराते नहीं थे। तो एक दिन की बात है, सब संगत को जैसे होता था, रात को छुट्टी हो गई तो गुरुजी कमरे में चले गए, तो हम 3 लोग थे, हमें भीतर बुला लिया। और थोड़ी देर में गुरुजी ने कर्नल जोशी को कहा, जोशी चल जनरल वर्मा को फ़ोन लगा। जनरल वर्मा उन दिनों मिलिट्री सेक्रेटरी थे, सो मिलिट्री सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। सो उनको इन्होंने फ़ोन लगाया तो गुरुजी ने पकड़ा और कहते हैं वर्मा असी टाइगर हिल ले लिया। सो ही सेड गुरुजी, आई मीन ऑब्वियसली ही मस्ट हैव सेड कि हमें नहीं पता उन्होंने उस तरफ से क्या कहा, तो ये कहा होगा कि ही वुड बी द probably maybe one among 2-3 people who would know the first कि क्या हुआ है। But he says नहीं गुरुजी नहीं पता, तो कहते असी टाइगर हिल ले लिया, and he kept the phone. Within 2-3-4 minutes General Verma called back, गुरुजी असी टाइगर हिल ले लिया। So Guruji knew before he knew, before the protocol according to which General Verma would have been one of the first to know. He didn't know, but Guruji knew. And then the answer to this question lies that Guruji lifted his vest और उन्होंने अपनी छाती नंगी की, और हमने देखा उस पे कितने काले निशान थे। And Guruji said, मैं उत्थी तसी का, मैं तले। So this is what divinity does. वो एक बार में महाभारत या रामायण के अस्त्रों की तरह उनको भस्म नहीं करते,
या ब्रह्मोस की तरह वहाँ जाकर उनको ख़त्म नहीं करते। स्पिरिचुअलिटी की अपनी साइंस है। So I think, Vasan uncle, I should stop here with deep appreciation for your commitment, for your sincerity, for your punctuality to conduct this platform. And thanks to you and the author and the organizing team for giving me the opportunity to share whatever little I could. And I hope I have fulfilled the expectations of those who have decided that I should be one of the interventionists. Thank you, Guruji. Jai Guruji. Namaste, Sangatji. Thanks a lot, Usha Basina auntie, for your deep thoughts on the subject. I'll request Rahul uncle and Tanuja auntie, please unmute and you may open your videos. Yeah, thank you. Over to you, Rahul uncle. Jai Guruji uncle. It is now nearly 1.5 hours. People are getting impatient, so I will not take much time. I'll spend a little time on the concept of surrender or connecting with the Guruji. And as it has been rightly said, कि surrender करना या श्रद्धा कनेक्शन जोड़ना गुरु जी के साथ क्या होता है। मैं छोटी सी 2 इंसिडेंट या सत्संग सुनाऊंगा, उसी से आप लोगों को महसूस होगा कि सरेंडर या कनेक्टिंग विद गुरु जी कितना डिफरेंट होता है। एक छोटी सी इंसिडेंट है, कुछ संगत बस में कहीं जा रहे थे, मेरे ख्याल गुरु जी के कोई स्थान को जाते होंगे, डिटेल्स पता नहीं है। उसमें एक लेडी खड़ी होके सत्संग कर रही थी और बताती थी कि आप सब कुछ छोड़ के गुरु जी को सरेंडर कर लो, आपके सारे काम हो जाएगा। मार्क द वर्ड, आपके सारे काम हो जाएगा। मेरे सवाल होता है कि ये क्या सरेंडर होता है, ये क्या कनेक्शन विथ गुरु जी होता है? क्या आप गुरु जी के साथ कनेक्शन जोड़ो, आपके सारे काम हो जाएगा। सेकेंडली, एक इंसिडेंट 1994-95 की है, जब गुरु जी जलंधर में होते थे। एक परिवार उनके दर्शन में हर रोज आते थे, पूरा सत्संग सुनते थे, लंगर खाते थे, चाय प्रसाद सारे चीज गुरु जी को पूरी कनेक्शन में रहते थे। जो फिजिकल कनेक्शन, वो चीज मैं बता रहा हूँ, वो होते थे। बट बाद में उनके परिवार में एक हादसा हुआ, उनके सन इन लॉ का एक्सीडेंट में, मोटर एक्सीडेंट में डेथ हो गया। उसके बाद वो परिवार वाले बड़े दुखी हुए और बोले, हम गुरुजी के इतने बड़े भक्त थे, हम गुरुजी के पास हर रोज जाते थे। एक तो गुरुजी सारे लोगों को अपना पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट बताते थे, हमें क्यों नहीं बताया कि ये हादसा होने वाला है? और सेकेंडली कि ये गुरुजी के इसको क्यों, और मतलब व्हाई ही कुड नॉट प्रिवेंट द एक्सीडेंट। दिस काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन लेके अगर वो गुरुजी के पास जाते थे, can we say that is it surrender or is it a connection with Guruji? So जब गुरुजी आप तनुज आंटी, तनुज कपूर आंटी और उषा वासिन ने बताया कि डिफरेंस बिटवीन श्रद्धा एंड फेथ, ये चीज भी किताब में लिखा गया इस चैप्टर में। राइटली इट हैज बीन सेड कि सरेंडर और श्रद्धा काफी डिफरेंट है। ये एक भक्ति मार्ग का हिस्सा है, जो कि गीता में लिखा गया है। देयर आर 3 ways of connecting with God. One is ज्ञान योग, the second is कर्म योग, and the third is भक्ति योग।
बट ये तीनों ये जो पाथ है, स्पिरिचुअल कनेक्शन विथ गॉड, दे आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता है। इस करके गीता में आप देखेंगे जो चैप्टर 18 है, इसमें 2 श्लोक है, 62 और 66, जिसमें सरेंडर का मतलब लॉर्ड कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। पहले है 62, उसमें बताया गया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावन भारत। हे अर्जुन, you surrender wholeheartedly to me. By his grace, you will attain perfect peace and eternal abode. और जो सेकंड श्लोक है, ये है 66, उसमें लिखा गया है सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। That means you leave aside all ritualistic methodologies and surrender to me. I shall liberate you from all sinful reactions. Do not fear. If that is what Lord Krishna has said, कि surrender, ये surrender सिर्फ if we go and surrender or have faith or trust in Guruji and we think that our materialistic needs, our worldly affairs, everything will be taken care of, that is not surrender. In this connection, again, the other aspect is that letting things to go. It means let the results of your surrender should not be there. That means you should not hanker after the results of your surrender or connection with the Guruji or God. So इसलिए गीता में जो चैप्टर 2 में वर्स नंबर 47 है, उसमें वो जो फेमस सेइंग है कर्मणे बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन बताया गया कि सरेंडरिंग इटसेल्फ इज योर स्पिरिचुअल कर्म. You should not expect in return something like you demand grace from God. आप लोग शब्द सुने होंगे जो कि कई बार गुरुजी ने उसको प्ले कराते थे, जिसमें एक तपस्वी ने 100 साल एक पत्थर के ऊपर बैठ के तपस्या किया, तो अल्टीमेटली उसको आवाज आया, हे तपस्वी, तुम्हारा तपस्या सफल हुआ और तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो तपस्वी बोला कि अगर आप मेरे तपस्या में संतुष्ट है, काइंडली तपस्या का फल मेरे को दीजिए। तो पत्थर ने बताया कि गुरु भगवान जी की ये तपस्वी तो अपना तपस्या का फल मांगना चाहता है, वो मेरे ऊपर 1 साल बैठ के तपस्या कर रहा था, तो मेरे को क्या मिलेगा? दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट टू सरेंडर. You need not expect anything, or you should not do surrender or connection with God with the desire of having something, to get something in return. Just surrender. That is what is all about. And in all these satsangs which we have mentioned in this chapter, अगर लोगों को गुरुजी अपने कृपा या ग्रेस से ठीक किए हैं, it is because of their spiritual earning, their connection with God. Not only this lifetime, it is also their karmic earning or prarabdha which they earned at the time of the birth. इस करके ये जो रैशनैलिटी और लोगों के मन में सवाल उठता है कि मेरा क्यों, मैं तो गुरुजी को सरेंडर किया, मैं गुरुजी को मानता हूँ, मैं एवरीथिंग आई एम कनेक्टिंग विथ गुरुजी, बट मेरा काम नहीं होता है, मेरा जो बीमारी ठीक नहीं होता है, इसका यही सवाल है. और इट हैज बीन ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड बाय तनुज कपूर आंटी एंड उषा आंटी दैट the connection with the Guruji and why Guruji was curing people of their psychological, physical ailments is to lead you to the path of spiritualism, तुआनु रब दे नाल जोड़ने के लिए. तो this is what I want to say at this stage, and I do not want to take any more time. So आप लोग ये वासन अंकल आपके प्लेटफॉर्म और आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ. आई एम ग्रेटफुल दैट यू हैव adopted this platform for spreading the message of Guruji, and
today both Tanuj Kapoor auntie and Usha auntie, they did exceedingly well. It's a beautiful satsang, beautiful way of describing about Guruji. Book was just a medium, and reading the book was just a medium. They expressed beautifully what they understand about Guruji, and it is a benefit of the larger Sangha. Jai Guruji. Jai Guruji. Jai Guruji Maharaj. Thanks a lot, everyone. Tanuj Kapoor auntie ji, Usha Bhasin auntie ji, Rahul uncle, and the Sangat, जिनके गुरुजी महाराज की कृपा हम सब पर रही. It was a memorable session. Sangat ji, next session 6 September को होगा. The topic will be the Vibhuti moments, and the reader of the session will be Namrata Paul auntie ji, and Leela Joshi auntie will moderate the session. Next session on 6th of September. So गुरु महाराज की कृपा हम सब पर, आप सब पर, गुरु संगत पर बनी रहे. इसी के साथ ही हम सब महाराज से आज्ञा लेंगे. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी.